Hello students, now we are on the verge of our chapter number 4, chemical bonding and molecular structure, and this is the last theory of this chapter 4.9 is about the hydrogen bonding. We already mentioned in my first lectures there are three main types of bonds: metallic bonds, ionic bonds and covalent bonds, and under the title of covalent bonds is further classified into three different types of bonds. One is van der Waals bond, hydrogen bond and coordinate bonds. So today we talk about the hydrogen bonding. So the first and the prime conditions for this hydrogen bonding, your bond must be covalent in nature. So if the covalent molecules are present, then and then there is a possibility of hydrogen bonding. So covalent bonds and these second conditions or the para conditions is that the bonds are polar in nature. The bonds are polar in nature and having a very weak partial negative charge at the one region of the molecule and partially positive charge at the another, because it's the simple meaning that if the bond is polar in nature, so definitely there is a partial negative charge as well as the partial positive charge in the molecule, and the positive and the negative regions of one molecule are attracted to the oppositely charged region of the nearby molecule, and this force of attraction is called as a dipole attraction. There is one more attraction is called as a dipole force, but a special case of this dipole force is the hydrogen bond. So what's the difference between this dipole force versus hydrogen bond? So it is attractive force between the hydrogen attached to an electronegative atom of one molecule and the electronegative atom of a different molecule. देखिए, मैं यहाँ पे आपको इस तरह से भी दिखाना चाहता हूं कि पहले आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाना है, बनाना है, आपको समझना है, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि इसकी फर्स्ट और प्राइम कंडीशन है कि मेरा जो मॉलिक्यूल है वो कोवेलेंट पोलर होना चाहिए. दूसरी कंडीशन क्या है कि जो दूसरा मॉलिक्यूल है या अपना खुद का मॉलिक्यूल है, अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एक भी मॉलिक्यूल हो सकता है, तो उसमें जो हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन होना चाहिए और वो पार्शियली डेल्टा प्लस होना चाहिए, यानी पार्शियली पॉजिटिव होना चाहिए, और जो दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसके पास लॉन पेयर होनी चाहिए. So there is attractions between the lone pair of such an atom with the partially positive hydrogen bond. So this attraction is called as a hydrogen bond. आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल एकदम easy है. So the hydrogen atom of one molecule is electrostatically attracted to the electronegative nitrogen, oxygen or fluorine atom in another molecule. So this force of attraction is called as a hydrogen bond. इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल द हाइड्रोजन बॉन्ड इन ईच वाटर मोलिक्यूल. देखिए अभी वाटर मोलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, तो आप समझना चाहिए कि वाटर इज अ कोवेलेंट कंपाउंड एंड वाटर इज अ पोलर इन नेचर बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. दूसरा क्या है कि ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर भी है, right? So this lone pair of oxygen is attracted to the another water molecule which is H delta plus. आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लॉन पेयर है. समझ में आ रहा है? ये लॉन पेयर है, हमें मालूम है ये डेल्टा माइनस है और ये डेल्टा प्लस दूसरा मोलेक्यूल का है. सो देर इज अ बॉन्ड, देर इज अ अट्रैक्शन. तो ये जो अट्रैक्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं उसको मैं डैश लाइन से यहाँ पे दिखाया हुआ है, उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे. ये डाइपोल अट्रैक्शन से थोड़ा बढ़िया अट्रैक्शन होता है, यानी इट्स रिक्वायर मोर एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड कंपेयर टू द डाइपोल अट्रैक्शंस. फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपके पास जो मोलेक्यूल है उसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पोर्शन है उसके पास लॉन पेयर होनी चाहिए, और अपने खुद के मोलेक्यूल में या दूसरे मोलेक्यूल में जो पार्शियली डेल्टा प्लस है वो H होना चाहिए. So there is a attractions between this lone pair versus the partially positive delta plus hydrogen is called as an hydrogen bond. तो यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड का यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिखाया हुआ है. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दूसरा एक वाटर का मोलेक्यूल्स है, तो हमें मालूम है कि यहाँ पे उसके पास लॉन पेयर है, इसके पास भी यहाँ पे क्या है, लॉन पेयर है.
समझ में आ रहा है? यहाँ उसके पास दो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होने की वजह से वो कुछ इस तरह से यहाँ पे जुड़ सकता है। आपको समझ में आ गया होगा, समझ क्लियर? तो देयर इज अभी यहाँ पे जो फिगर आपको यहाँ पे दिखाई गई है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल की दिखाई गई है। तो उससे आपको ये भी पता चल गया होगा कि जो हमारा ग्रुप नंबर 15 है, ग्रुप नंबर 16 है और ग्रुप नंबर 17 है। आपको फिर से दिखा रहा हूं, ग्रुप नंबर 15 यानी हमारा नाइट्रोजन फैमिली का जो है, ग्रुप नंबर 16 यानी हमारा ऑक्सीजन फैमिली का है, और ग्रुप नंबर 17 ये हमारे पीरियोडिक टेबल में ये तीन ही ग्रुप ऐसे होते हैं कि जहां पे लॉन पेयर की प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है। क्योंकि ग्रुप नंबर 18 तो इनर्ट गैस है और ग्रुप नंबर 14 में तो मींस मेरे पास लॉन पेयर नहीं होती है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो लॉन पेयर की जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रुप 15, 16 और 17 में होने की वजह से अगर ग्रुप 15, 16 और 17 कोवेलेंट बनाते हैं तो उसके एक जो एटम से उसके पास तो लॉन पेयर है और दूसरा जो पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन आ जाएगा तो मुझे दिखाई देगा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। सो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड जो यहाँ पे मुझे अभी पानी में हमने देखा था तो वो 96 picometer है, while the hydrogen bond length is 197 picometer. So as the bond length indicates the bond strength, it can be seen that the hydrogen bond is much weaker than the covalent bond and the ionic bond. क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो आयोनिक और कोवेलेंट से कम है क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ अभी ज्यादा है। However, the hydrogen bond enthalpy is stronger than most other intermolecular forces इन द रेंज ऑफ 1 to 5 किलो कैलोरी पर मोल, यानी वांडरवाल्स जो फोर्स होते हैं उससे वो ज्यादा है, यानी डाइपोल फोर्स से भी उसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो ज्यादा है। सो दिस एनर्जी इज स्मॉलर देन द कोवेलेंट बॉन्ड एंथैल्पी 50 to 100 किलो कैलोरी पर मोल बट ग्रेटर देन द थर्मल एनर्जी मीन्स 0.6 किलो कैलोरी पर मोल एट द रूम टेम्परेचर। यानी ये आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे समझा रहे हैं कि आपका ये जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट से कम है, क्योंकि कोवेलेंट के मुझे ब्रेक करने के लिए इट्स रिक्वायर्ड 50 to 100 किलो कैलोरी पर मोल। लेकिन जैसे रूम में यहाँ पे जैसे कोई एक रूम है, जैसे N2 के मोलिक्यूल्स होते हैं, O2 के मोलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के मोलिक्यूल्स होते हैं, तो अगर रूम की जो थर्मल एनर्जी होती है वो 0.6 किलो कैलोरी पर मोल है, यानी वो रूम टेम्परेचर के हाइड्रोजन बॉन्ड उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी जो रेंज है वो 1 to 5 किलो कैलोरी पर मोल से थोड़ी ज्यादा होती है। क्लियर? अभी कोज ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है मैंने अभी आपको बोला था, फिर से यहाँ पे भी दिखाया गया है कि कोज ऑफ फॉर्मेशन क्या है। सो इन मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग NH, देखिए आप, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर होती है, यस। ऑक्सीजन के पास भी लॉन पेयर होती है, यस। हेलोजन के पास लॉन पेयर होती है, यस। तो ये जो अभी हमें दिखाई दे रहे हैं कि NH है, OH है, FH बॉन्ड्स, द लार्ज डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिव बिटवीन है। हमें मालूम है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल ऑफ मूलिकन says that the electronegativity value for hydrogen is 2.1, while the nitrogen having a 3, oxygen having a 3.5, and fluorine having a 4 or near about 4, which leads to the highly polar covalent bond. यानी हमारा बॉन्ड है वो बिल्कुल डाइपोल पे चला गया है। So the electronegative atom of oxygen, nitrogen और fluorine has a partial negative charge and the hydrogen having the partial positive charge. तो अभी क्या होगा? सो दिस रिजल्ट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज रिप्रेजेंटेड, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना वो जैसे यहाँ पे बहुत बढ़िया इस तरह से, क्योंकि यहाँ इसका लॉन पेयर है और उसका डेल्टा प्लस है, तो इसका एक्सटेंट है हम देखना चाहते हैं तो वो ज्यादा है कंपेयर टू द डाइपोल अट्रैक्शन से, मुझे यहाँ पे कुछ ज्यादा मिल रहा है। क्लियर हो रहा है? आपको समझ में आ रहा है? फिर से मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूं आपको, एक और पॉइंट्स भी मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे दिखाया है द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड। यानी जो एक्सटेंट है, जैसे हमारा फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है और गैसियस में बिल्कुल कम हो जाती है। So it is the maximum in the case of solids and minimum in the gaseous states. So hydrogen bonding can strongly influence the structure and the properties of the compound. कुछ इस तरह से भी हम समझा सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है। यानी जो नॉर्मली गैसियस होना चाहिए लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो क्या होता है, लिक्विड या सॉलिड तक वो चला जाता है।
यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस की भी बात मैंने आपको बताना चाहता हूं कि डिस्पाइट देयर लो बॉन्ड एंथैल्पी, अभी आपको सभी को मालूम होगा, अभी देखिए कई बच्चे को ये क्वेश्चंस भी है कि सर जी ये हाइड्रोजन बॉन्ड में इतनी कम एनर्जी होने की बावजूद भी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पढ़ना चाहिए इसलिए पढ़ रहे हैं? नो, मैं आपको एक बात बताना यहाँ पे चाहता हूं कि जैसे हमें कुछ एसेस पूछे जाते हैं, जैसे मेरे इंग्लिश ग्रामर में, तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एसे, राइट? आपने कभी देखा होगा तो कंटेंट बेस्ड एसे है, जैसे हम कोई ट्रैवलिंग करते हैं, जैसे मैंने कोई एक अपना जर्नी किया हुआ है तो मैं जर्नी के लिए कि भाई आपको मेमोरेबल जो टूर है उसके लिए आप ऐसे लिखो, या कुछ इस तरह से भी होते हैं। तो एक ऐसे कुछ इस तरह से होता है कि इफ क्लॉक इज नॉट इन द यूनिवर्स, यानी यहाँ पे कोई घड़ी नहीं होती तो हमारा जीवन कैसा होता, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो तो क्या होगा मालूम है? मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे, और फिर मैं आपको यहाँ पे जो अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ये है, क्योंकि ये जो पेपर है ना, ये पेपर वो स्टार्च या सेल्यूलोज से बना होता है, यानी मेनली सेल्यूलोज का है। सेल्यूलोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, और मेरी जो इंक है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रही है, इसलिए आप दिख रहे हैं, समझे? आपको दिखाई दे रहा है ये मेरा। दूसरा, जो हम बने हुए हैं एज ए ह्यूमन स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज है, एनिमल किंगडम हो या प्लांट किंगडम हो, आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें डीएनए उसका जो मैटर है, तो वो डीएनए में भी एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से ही तो डीएनए मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। अगर डीएनए ही नहीं है तो मेरा नहीं, कुछ भी जो लिविंग मैटर का एग्जिस्टेंस ही नहीं हो पा रहेगा। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि व्हाट आर द यूनिकनेस, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स इन द हाइड्रोजन बॉन्ड। So despite their low bond enthalpy, hydrogen bonds are of great significance both in the biochemical systems as well as in the normal chemistry. They are extremely important because they are responsible for linking polypeptide chains in protein. अगर प्रोटीन्स में जो बायोलॉजी के बच्चे हैं फ्यूचर में या अभी भी पढ़े होंगे तो उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, वो कुछ समझना हो तो उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से, तो उसमें रिस्पॉन्सिबल ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। और फॉर लिंकिंग पेयर्स ऑफ बेसिस इन लार्ज न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग मोलेक्यूल्स, मैंने अभी बोला कि डीएनए में एडिनिन, ग्वानिन के साथ और साइटोसिन, यूरेसिल के साथ कुछ भी, या मींस एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, जो 5 हमारे पास पीरिन और पेरिमिडिन टाइप के बेस होते हैं, तो उसको जुड़ने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड की होगा तो ही वो जुड़ सकते हैं। Next, the hydrogen bonds maintain this large molecule in specific molecular configurations, and which is important in the operations of genes and enzymes, क्योंकि हमारे सारे enzymes है which can be made up from proteins, यानी polypeptide से बने होते हैं। Hydrogen bonds are responsible for water being liquid at room temperature. अगर यहाँ पे जो हमारे अर्थ पे जो पानी है वो जो टिका हुआ है, क्योंकि देयर इज हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी सनलाइट को उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तभी वो वेपर फेज में चला जाएगा। इफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन वाटर तो पानी पहले से गैसियस फॉर्मेट में ही हो सकता है। समझ में आ रहा है? सो लाइफ एज वी नो दैट इट वुड नॉट एग्जिस्ट सिंस हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैव अ लो बॉन्ड एंथैल्पी, दे आल्सो हैव अ लो एक्टिवेशन एनर्जी, एंड दिस रिजल्ट्स इन देयर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन मेनी रिएक्शंस एट नॉर्मल टेम्परेचर। आप जो भी कोई दवाई ले रहे हैं, जैसे आपने पैरासीटामोल ले है, या कुछ आपने जैसे मैंने विक्स एक्शन 500 आप ले रहे हैं, या आप क्रॉसिन की टेबलेट्स ले रहे हैं, या कुछ आप कफ सिरप ले रहे हैं, जो भी आप टेबलेट्स ले रहे हैं, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से ही हमारे बॉडी में जा सकती है। यानी वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, वाटर सॉल्युबल में वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहिए, तो ही वो इफेक्टिवनेस होती है। जैसे कोई प्लांट है वो अपनी जड़ से जो मिट्टी के साथ जो जुड़ सकते हैं, तो मिट्टी की में भी पानी का जो यहाँ पे जो एक भेज, हम उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं, तो उसका कुछ क्यों है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से तो वो टिका रहा है। सो ये बहुत, जैसे हमको बायोलॉजिकली हम देखें तो इसका जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है वो बहुत बढ़िया है। समझ में आ रहा है? मैं फिर से शॉर्ट एंड स्वीट में बोल रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज द अट्रैक्टिव फोर्स which binds hydrogen atom of one molecule with the electronegative atom, either fluorine, oxygen or nitrogen of another molecule.
तो हम इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड की साथ हम बोलेंगे। फिर मैंने उसका कोजिस के भी साथ आपके साथ बात की थी कि उसका जो कोजिस है वो क्या होना चाहिए, उसका फिजिकल स्टेट्स की वजह से भी हम क्या उसको समझ सकते हैं। फिर हमारा जो पॉइंट्स आएगा, अभी हाइड्रोजन बॉन्ड तो आपने देखा, अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, या हम उसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी हम बोल सकेंगे। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किस तरह से यहाँ पे हो पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि भाई देर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एक होता है इंटरमोलेक्युलर और इंट्रामोलेक्युलर। इंटरमोलेक्युलर मानी दो मोलेक्यूल के बीच में, इंट्रा यानी एक ही मोलेक्यूल के अंदर ही अंदर, उसको हम इंट्रा बोलेंगे। जैसे हम बोलते हैं दो सिटी के बीच में जो ट्रेन दौड़ती है, रन करती है, तो उसको हम इंटरसिटी ट्रेन बोलते हैं। दो नेशन के बीच में जो मैच होता है तो उसको हम इंटरनेशनल मैच बोलते हैं। तो उसको इंटरमोलेक्युलर बोल रहे हैं, यानी दो मोलेक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। अभी आपने देखा था वाटर में क्या होता, दो वाटर के बीच में था, दो एमोनिया के बीच में है, दो जैसे HF के बीच में होता है तो उसको हम इंटरमोलेक्युलर बोलेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मोलेक्यूल इटसेल्फ हैविंग, अंदर ही अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंट्रामोलेक्युलर हम बोल सकते हैं। So when hydrogen bonding occurs between an hydrogen atom of one molecule and the electronegative atom of a second molecule, right? तो अब देखिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। समझ में आ रहा है? दिस टाइप ऑफ इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन द मोलेक्यूल्स ऑफ HF, अल्कोहल, वाटर, एमोनिया, सभी जगह पे मिलते हैं। और ये क्या होता है कि एज ए इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से वो बहुत ज्यादा मोलेक्यूल के साथ अपना एसोसिएशन कर पा रहा है। सो इफेक्ट ऑफ दिस इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिफ्लेक्टेड इन मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। जैसे मेल्टिंग पॉइंट उसका बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत बढ़िया हो जाता है, विस्कोसिटी भी अच्छी तरह से हो जाती है, सरफेस टेंशन है, सॉल्युबिलिटी है, ये जो मेरे पास प्रॉपर्टीज होती है तो उसको ये इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड अफेक्ट कर रहे हैं। दूसरा है मेरे पास इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पे आप देखिए, इन दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक हाइड्रोजन और दूसरा, लेकिन क्या होता है, एक ही मोलेक्यूल में FON होता है और उसमें हाइड्रोजन होता है, और दोनों अंदर अंदर यानी अपनी तरह, तो उसको हम इंट्रामोलेक्युलर बोल रहे हैं, विद इन द सेम मोलेक्यूल। सो द इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड रिजल्ट्स इन द साइक्लाइजेशन ऑफ द मोलेक्यूल एंड प्रिवेंट्स देयर एसोसिएशन, यानी वो दूसरे के साथ एसोसिएशन नहीं कर पा रहा है। सिंस दिस डज नॉट अफेक्ट मच फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। जैसे इंटरमोलेक्युलर में अभी आपको दिखाता हूं, ऑर्थोक्लोरोफिनोल का मैं आपको बताऊंगा, जैसे सैलिसाइल्डिहाइड है, ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड है। अब देखिए, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाना चाहता हूं। आप चारों का स्ट्रक्चर्स आप देखिए, फिर से आप देखिए, यहाँ पे मैंने दिखाया है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, देखिए सॉरी ऑर्थोक्लोरोफिनोल, यानी क्लोरीन के पास लॉन पेयर है, यहाँ पे OH है तो इसके डेल्टा प्लस है, यहाँ पे लॉन पेयर है, तो अंदर ही अंदर यानी सेम मोलेक्यूल के बीच में क्या हो गया है, यहाँ पे बॉन्ड मुझे दिखाई दे रहा है। ये एक सैलिसाइल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे O के पास लॉन पेयर है, हाइड्रोजन हैविंग अ डेल्टा प्लस, सो देयर इज अट्रैक्शन, देयर इज दिस डाइपोल अट्रैक्शन इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन बॉन्ड। सो देयर इज अ इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे दिखा रहे हैं। एक एसिटाइल एसीटोन का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, CH3C डबल बॉन्ड और CH CO तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे भी इंट्रा का प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। इस तरह से यहाँ पे इथाइल एसीटोएसीटेट आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कहीं ज्यादा एग्जांपल्स है, मेरी बुक में तो जो एग्जांपल्स दिया हुआ है वो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का ही दिया हुआ है, दूसरा कुछ दिया हुआ नहीं है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे कहीं और एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि किस तरह से हम यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, उसकी एनर्जी अच्छी है, यानी उसको ब्रेक करने के लिए मुझे ज्यादा, क्योंकि वो कहीं मोलेक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है या सिंपली अपने ही मोलेक्यूल के साथ जुड़ा होने की वजह से इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड के जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, उसकी विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, सॉल्युबिलिटी है, वो कंपेयर टू द इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मुझे कम दिखाई दे रही है। सो इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल। जैसे कोई कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलेंगे, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर होते हैं, फोल्डेड स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA होता है,
राइट। तो उसके जो स्ट्रक्चर्स की जो अरेंजमेंट है, जो आपको पता है वॉटसन और क्रिक ने जो डीएनए का मॉडल आपको समझाया था, आपको 10th स्टैंडर्ड में भी आ गया होगा। तो 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द डबल हेलिक्स इन डीएनए, तो वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है, राइट। सो वन स्ट्रैंड विद द लॉन पेयर्स ऑन द नाइट्रोजन और द ऑक्सीजन ऑन द अदर स्ट्रैंड। तो देखिए आप यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अस्पेशली इंपॉर्टेंट इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम बिकॉज मेनी मोलिक्यूल्स इन आवर बॉडीज कंटेन NH and OH bond. DNA is an extremely large molecule composed of 2 strands of covalent bonded atoms offset from each other in a helical arrangement. And one of the miracles of life is that these 2 strands can separate from each other and replicate themselves from smaller molecule. So the 2 strands can separate because they are held together by hydrogen bond, and the hydrogen bonds are not as strong as the covalent bond within the strands. So the 2 strands can break apart under the right circumstances. When DNA unravels, the hydrogen bonds are broken but not the covalent bond. अगर हम दोनों जो अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो डीएनए का जो 2 स्ट्रैंड्स यहाँ पे मैंने दिखाया है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, एडिनिन ग्वानिन होता है, साइटोसिन थाइमिन होता है या जो भी होता है, तो उसके बीच में 2 या 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की या प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे 1, 2 और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल डॉटेड तरीके से यहाँ पे दिखाया है, टिपिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शंस बिटवीन स्ट्रैंड्स। तो ये जो आएगी, इसके जो मॉलिक्यूल्स का शेप आएगा, तभी तो वो डीएनए अपनी तरह से वर्क कर पा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का उसका जो इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, आपको मैं इस तरह से जेडी ली का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, लेकिन आपकी बुक में तो है ही। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी बुक में जो 4.9 का टॉपिक्स है वो आपको होमवर्क में लिखना पड़ेगा। मैं आपको फिर से आपका फोटोग्राफ्स तो मैं इसका भेजूंगा ही आपके पास, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने के लिए मैंने जेडी का मैंने मैक्सिमम यूज किया हुआ है। हमें एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाया नहीं है, इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो हमारा जो एक्सरसाइज है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे, बाद में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी हम सॉल्यूशन कर पाएंगे, और जो हमारा एक लेक्चर्स आता है तो उसमें हम एमसीक्यू के सॉल्यूशन भी साथ में शुरू कर पा रहेंगे। ठीक है, तो हम आज यहीं पे रुकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके एक्सरसाइज के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू।